A very good morning to all of you. Welcome you all in class 12th economics. So in previous class we were completed the chapter 8, that is income determination and the multiplier, and we have also discussed some examples of the numerical questions. So in today's class we are going to start the new chapter, that is excess demand and the deficient demand. Okay, so we have already know what is the meaning of the excess demand and what is the meaning of the deficient demand, causes of excess demand, how can we resolve the problem of the excess demand and deficient demand. So we will discuss all these things in this chapter. Okay, so in this chapter we are going to study the meaning of the excess demand or the inflationary gap. Excess demand is also called the inflationary gap. So in this chapter we are going to know about the what is the meaning of the excess demand and the inflationary gap. Second, in this we have discussed the causes of excess demand, what are the different causes which is responsible for the excess demand. Second is impact of excess demand, कि impact क्या होगा, इसका consequence, इसका फाइनल हम क्या बोलेंगे, circumstances या फाइनल रिजल्ट क्या होगा अगर excess demand होता है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ द डेफिशिएंट डिमांड, what is the meaning of the deficient demand and the deflationary gap. In this we also discuss about the causes of the deficient demand and the impact of the deficient demand. Next we will study the policy measures to control the excess demand and the deficient demand. So what are the different policies which is adopted by the government as well as the RBI, because we will discuss in this chapter we will discuss two kinds of policy. First one is fiscal policy and second one is monetary policy. So fiscal policy is done by the government and the monetary policy is done by the Reserve Bank of India, Central Bank of India, that is Reserve Bank of India. ठीक है, तो फिस्कल पॉलिसी पढ़ेंगे हम लोग, इसके मीनिंग पढ़ेंगे, इसके क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये पढ़ेंगे. एंड नेक्स्ट वी विल डिस्कस द मॉनेटरी पॉलिसी. मॉनेटरी पॉलिसी in which we have discussed the meaning and the instrument. So instrument we have already discussed in the chapter banking. So banking में से आपको पता है कि ये जो टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी के सारे मॉनेटरी पॉलिसी में जो भी जितने मेजर्स है क्वांटिटेटिव मेजर्स वो क्या हो गए हैं, रिड्यूस हो गए, डिडक्ट हो गए. तो ये सारे जो मेजर्स हैं क्वांटिटेटिव मेजर्स, जो बैंक रेट है आपका, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सारा क्या है हम इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे. बट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन दैट चैप्टर, सो वी विल स्किप दैट टॉपिक इन दिस चैप्टर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. What is excess demand and the deficient demand? So in the previous chapter we have studied that equilibrium level of income and output is determined by the equality between the aggregate demand, aggregate supply और the equality between saving and investment. Okay, last chapter में हम लोग ने पढ़ लिया है कि equilibrium की condition कहाँ पे बनती है. equilibrium की condition बनती है जब AD आपका AS के equal होता है, aggregate demand aggregate supply के equal होता है, और the equality between the saving and investment, जब saving investment के equal होता है. तो AD का हमने पढ़ा था क्या होता है, AD is C plus I and AS is C plus S. So C plus I which is equal to C plus S, ये equilibrium की condition है कि जब equilibrium की condition है तो वहां पे आपका aggregate demand aggregate supply के equal होना चाहिए. ठीक है, तो C plus I then I equal to S. तो ये दो इक्वेशन हमने क्या है लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ लिया है कि ये सब क्या होता है. ठीक है, ओके. सो कीन्शियन थ्योरी बिलीव्स दैट, कीन्शियन जो कीन्स है वो इनकी जो थियरी है वो बिलीव करती है दैट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम मे बी करस्पॉन्ड टू द फुल एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट और द ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज. ठीक है, कीन्शियन थ्योरी ये बिलीव करती है कि जो भी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है वो क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट में भी हो सकता है, अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट में भी होता है और ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट में भी होता है. आपको याद आ रहा होगा एक्चुअल एडी और रिक्वायर्ड एडी की जब हम लास्ट चैप्टर में बात कर रहे थे, तो फुल इक्विलिब्रियम की तो कंडीशन हर जगह हो रही थी ना, क्योंकि एडी एएस को काट रहा था, भले वो एक्चुअल वाले को कट कर रहा था और हमें रिक्वायर्ड कुछ और था. ठीक है, सो एक्चुअली अकॉर्डिंगली देयर वुड बी सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड एंड द डेफिशिएंट डिमांड. ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, आपके पास एक्सेस डिमांड की भी कंडीशन होती है और डेफिशिएंट डिमांड की भी कंडीशन होती है. व्हेन द इकोनॉमी इज नॉट एट फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, जब आपकी इकोनॉमी क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन पे
नहीं होती है। या तो इकोनॉमी ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन पे होती है एक्सेस डिमांड, या अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन पे होती है दैट इज डेफिशिएंट डिमांड। सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द एक्सेस डिमांड एंड द डेफिशिएंट डिमांड। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि एक्सेस डिमांड क्या होता है और डेफिशिएंट डिमांड होता है क्या होता है। ओके, सो द फर्स्ट वन इज एक्सेस डिमांड, और विच इज एक्सेस डिमांड इज ऑल्सो कॉल्ड द इन्फ्लेशनरी गैप। कभी किसी क्वेश्चन में आ गया कि इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप, तो ये मत सोचने लगेगा कि इन्फ्लेशनरी गैप क्या है, हम लोग ने पढ़ा नहीं। एक्सेस डिमांड को ही इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं। ये क्यों कहते हैं वो मैंने बताया आपको, क्योंकि ये टर्म इन्फ्लेशन से बना है। इन्फ्लेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है, जनरल राइज इन प्राइस लेवल। प्राइस लेवल क्या हो जाती है, वो इंक्रीज कर जाती है। लोगों की डिमांड क्या हो जाती है, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाती है। एडी इंक्रीज होने का मतलब है कि वो एक्सेस डिमांड की कंडीशन हो गई। एडी इंक्रीज हो गया है तो लोगों का क्या है, डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई, क्योंकि लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट हुई। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट हुई तो उनके पास इनकम आई। जब लोगों के पास इनकम आएगी तो लोग डिमांड भी ज्यादा करेंगे। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं व्हाट इज एक्सेस डिमांड एंड द इन्फ्लेशनरी गैप। सो एक्सेस डिमांड रिफर्स टू द सिचुएशन। एक्सेस डिमांड वो सिचुएशन होती है जब एग्रीगेट डिमांड इज इन एक्सेस ऑफ द एग्रीगेट सप्लाई। जब एग्रीगेट डिमांड, जब आपका एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के ज्यादा होती है, एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा होती है, करस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट इन इकोनॉमी। ठीक है, जब किस कंडीशन पे, जब आपका एग्रीगेट सप्लाई क्या है, कम होता है और डिमांड क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, करस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट। जो फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है उस कंटेक्स्ट से हम देखते हैं तो वहां पे क्या होता है, डिमांड ज्यादा हो जाती है और सप्लाई कम हो जाता है। ओके, सो एडी इज ग्रेटर देन एएस करस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट, और when actual level of aggregate demand is more than the required or the planned level of aggregate demand to maintain the full। जब आपकी जो एक्चुअल एडी है, when actual AD is more than the required AD, मतलब हमें जितने की रिक्वायरमेंट है एग्रीगेट डिमांड की उस, और एक्चुअल में डिमांड क्या है, ज्यादा है, देन करस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट, corresponding to full employment। ठीक है, तो when actual AD is more than the required AD, जब आपका actual AD क्या है, required AD से ज्यादा है, corresponding to full employment, so this situation is called the excess demand। excess demand जब टर्म आ रहा है तो समझ जाइए कि excess मतलब कोई चीज ज्यादा और पीछे क्या है, डिमांड। तो यहाँ पे डिमांड क्या हो जा रही है, वो सप्लाई से ज्यादा हो जा रही है। तो यही आपका इक्विलिब्रियम डिसबैलेंस हो जा रहा है। यहाँ पे इक्विलिब्रियम डिसबैलेंस हो जा रहा है ना, क्योंकि कोई भी इक्विलिब्रियम की कंडीशन कहाँ है, फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन वो है जब एडी एएस के इक्वल है। बट यहाँ क्या हो रहा है, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ही ज्यादा हो जा रहा है। ठीक है, फिर इन्फ्लेशनरी गैप रिफर्स टू अ सिचुएशन। इन्फ्लेशनरी गैप वो सिचुएशन होती है, इट इज द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। यही सिचुएशन होती है, एक्सेस डिमांड की ही सिचुएशन होती है। सो इट इज द इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द एडी बियॉन्ड द फुल एम्प्लॉयमेंट एंड एडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये किसके बीच का डिफरेंस होता है, एडी एट बियॉन्ड के बारे में बात करता है, जो फुल एम्प्लॉयमेंट के बियॉन्ड है, और एडी जहां पे फुल एम्प्लॉयमेंट। देखिए इस यहाँ पे है जो एडी क्या है, आपका फुल एम्प्लॉयमेंट पे है। एक ये एडी हो गया ना आपका, यहाँ पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो गई क्योंकि एडी एएस को इंटरसेक्ट कर रहा है। एक ये सिचुएशन और एक ये सिचुएशन, इन सिचुएशन, ये सिचुएशन और ये सिचुएशन का जो डिफरेंस होता है वही यहाँ पर इन्फ्लेशनरी गैप होता है। इसमें कह रहा है ना कि इट इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन द एडी बियॉन्ड द फुल एम्प्लॉयमेंट, एडी बियॉन्ड द फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन ये है पॉइंट ई पे, क्योंकि यहाँ पे आपका एडी क्या है, इंटरसेक्ट कर रहा है, जो आपको रिक्वायरमेंट है वो एडी एग्रीगेट सप्लाई को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जो फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है और जो एक बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस, मतलब ये लाइन और ये लाइन, एक्चुअल और रिक्वायर्ड के बीच का जो ये डिफरेंस है, वही आपका क्या होता है, एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशनरी
गैप होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ये डायग्राम है, डायग्राम को समझते हैं। ओके, देखिए क्या कह रहा है, इन द डायग्राम एट पॉइंट ई, बस समझते जाइए। पॉइंट ई पे क्या है, एट पॉइंट ई आपको पता है ये क्या है, एडी इक्वल टू एएस है, फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है। यहाँ पे जितना रिक्वायरमेंट थी, जितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट चाहिए थी, वो सारे क्या है, एम्प्लॉयड हैं। देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी में पूरा फुल एम्प्लॉयमेंट है। अब उससे ज्यादा नहीं हो सकता। इफ एग्रीगेट डिमांड राइजेस टू 81, अगर यही एग्रीगेट डिमांड जो AD0 है, जहां पे आपकी फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है, वहीं आपकी यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट, मतलब हमें जितनी डिमांड होती उतना ही सप्लाई हो रहा है। बट जब आपका डिमांड क्या हो जा रहा है, ज्यादा हो जा रहा है, तो आपका डिमांड जब ज्यादा होगा तो कर्व हमारा क्या होगा, शिफ्ट ही होगा। तो ये कर्व AD0 से AD1 हो जा रहा है। देन देयर इज एक्सेस डिमांड इन द इकोनॉमी, तब आपकी इकोनॉमी में क्या है, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन हो गई है। बिकॉज ऑफ AD क्या है, एग्रीगेट डिमांड क्या हो गया है, इस फुल एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे क्या है, यहीं पे तो आपका इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। इसके बाद क्या हो गया आपका डिमांड, ये देखिए आपका डिमांड क्या हो गया, ज्यादा हो गया, और आपकी सप्लाई क्या हो गई है, वो कम हो गई है। सो द डिफरेंस बिटवीन द AD1 एंड AD0, जो डिफरेंस है किसके बीच का, AD1 एंड AD0, AD1 एंड AD0, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, वही आपका क्या है, इन्फ्लेशनरी गैप। अब यहां पे देखिए आप, जैसे FM, ठीक है, ये FM माइनस EM विच इज इक्वल टू FE। अब इसमें से हम इतना माइनस करेंगे तो ये FE आएगा। ये FE आपकी क्या कंडीशन है, इसी को हम लोग इन्फ्लेशनरी गैप बोलते हैं। ठीक है, इन्फ्लेशनरी गैप और दी एक्सेस डिमांड। तो एक्चुअल एडी आपकी कितनी थी, एक्चुअल एडी आपकी FM है, एक्चुअल एडी आपकी इतनी है, और रिक्वायर्ड एडी इतनी, आपको चाहिए बस इतनी ही, बट लोग डिमांड इतनी ज्यादा हो गई तो एक्चुअल एडी FM हो गया है। तो एक्चुअल एडी आपका FM है, क्योंकि ये वाली एक्चुअल की लाइन है। AD1 क्या है, एक्चुअल की लाइन है, एंड द AD0 इज रिक्वायर्ड एडी। रिक्वायर्ड मीन्स हमें जितनी डिमांड की जरूरत है, क्योंकि इसी पॉइंट पे तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। तो एक्चुअल एडी जो है FM, वो क्या है, और रिक्वायर्ड एडी क्या है, EM। तो जो ये बीच का डिफरेंस हुआ FE, इट इज द इन्फ्लेशनरी गैप और द एक्सेस डिमांड। यही आपका इन्फ्लेशनरी गैप है और एक्सेस डिमांड की सिचुएशन। ठीक है, सो पॉइंट E इज अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। पॉइंट E आपको पता है ये क्या है, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, बिकॉज AD इक्वल टू AS है। जितना भी इकोनॉमी में रिसोर्सेज अवेलेबल है, वो प्रॉपर उनका यूटिलाइजेशन हो रहा है। जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल थे, ह्यूमन रिसोर्सेज जो भी अवेलेबल थे, उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है। पॉइंट E1 इज ऑल्सो एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। आपको ये पता है ना कि ये भी पॉइंट इक्विलिब्रियम का ही है, बट ये बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है। बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन मतलब ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट। जितनी रिसोर्सेज हमारे पास था, जितना रिसोर्सेज यूज कर सकते थे, उससे ज्यादा रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं। ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज मतलब जितने रिसोर्सेज अगर हमारे पास 100 रिसोर्सेज हैं, तो हम कितने का यूज करें, हम 200 का यूज करें। तो ये सिचुएशन क्या है, पॉइंट E1 को भी आप ये नहीं बोलेंगे कि ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं है, बट ऑब्वियस है ये है, क्योंकि एक्चुअल एडी एग्रीगेट सप्लाई को इंटरसेक्ट कर रहा है। जहां पे एडी AS को इंटरसेक्ट करेगा वो इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा, बट ये फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन नहीं होगी, क्योंकि रिक्वायर्ड एडी इंटरसेक्ट करेगा जब एग्रीगेट सप्लाई कर्व को, इस पॉइंट E को, वो सिचुएशन आपकी क्या होगी, इक्विलिब्रियम की होगी। तो ये भी E1 भी क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है, बट बियॉन्ड द फुल एम्प्लॉयमेंट, मतलब ये सिचुएशन क्या हो रही है, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट। जितने भी रिसोर्सेज हैं, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो ये जो डिफरेंस हो गया आपका MM1, ये डिफरेंस दिख रहा है MM1, यही क्या हो रहा है आपका, ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। जितने रिसोर्सेज हैं उनका ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, ज्यादा उससे यूज हो रहा है। सो इन फिगर 1 9.1 AD0 इज, आपको ये समझ में आ गया होगा, AD0 क्या है, आपका डिजायर्ड है, जितनी आपकी जरूरत है, और रिक्वायर्ड है, एंड AD1 आपका एक्चुअल है।
ठीक है, तो यही दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का ये जो डिफरेंस है, मतलब एक्चुअल और रिक्वायर्ड एडी का जो डिफरेंस है, वही आपका क्या हो जाता है, एक्सेस डिमांड और डिफ्लेशनरी गैप की सिचुएशन हो जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसका इसमें नेक्स्ट है आपका कॉजेज ऑफ एक्सेस डिमांड, कि एक्सेस डिमांड किसकी वजह से हो रहा है। कोई तो उसकी वजह से, उसके पीछे कोई होगा ना, कि जिसकी वजह से आपके पास एक्सेस डिमांड की सिचुएशन इकोनॉमी में हो रही है। तो कॉजेज ऑफ एक्सेस डिमांड, ओके, सो कॉजेज ऑफ एक्सेस डिमांड इज इंक्रीज इन मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन क्यों हो रही है, बिकॉज इंक्रीज इन मनी सप्लाई। आपको मनी सप्लाई पता है, मनी सप्लाई क्या होता है कि जो भी फुल जितना भी मनी है, मनी जो सर्कुलेट होता है इकोनॉमी में, वो उसका बहुत ज्यादा सर्कुलेशन हो गया, सर्कुलेशन ऑफ मनी क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया है कोई भी इकोनॉमी में। ठीक है, तो मनी सप्लाई ज्यादा होने का मतलब आपको पता चल गया, क्योंकि डिमांड लोगों की ज्यादा क्यों होगी, जब लोगों के पास पैसा ज्यादा हो। और पैसा कब ज्यादा होगा, जब लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होंगी ना, तभी तो लोगों के पास पैसा होगा। जब लोग काम करेंगे तभी उनके पास पैसा होगा। तो जब एक्सेस डिमांड की सिचुएशन आ रहा है, मतलब इकोनॉमी में मनी सप्लाई क्या हो गया, मनी का जो सप्लाई हो रहा है, मनी जो सर्कुलेशन हो रहा है किसी भी इकोनॉमी में, वो ज्यादा हो गया। और उसकी वजह क्या है, उसकी वजह है कि लोगों का कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन कंजप्शन एक्सपेंडिचर। सबसे पहला तो है कि आपका जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, जो हाउस होल्ड सेक्टर कंज्यूम कर रहा है, वो बहुत ज्यादा हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जो भी प्रोड्यूसर सेक्टर है, जो भी फर्म्स है, वो क्या करती है, इन्वेस्टमेंट उनका बहुत ज्यादा हो गया, वो इन्वेस्टमेंट डे बाय डे बहुत ज्यादा करते जा रहे हैं। जब आपको पता है कि हम लोगों ने मल्टीप्लाई का रिलेशन पढ़ा था, जब इन्वेस्टमेंट ज्यादा करते जाएंगे तो इनकम भी ज्यादा जनरेट होती जाएगी। तो जब लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा तो लोग ज्यादा डिमांड भी करेंगे। नेक्स्ट है इंक्रीज इन गवर्नमेंट सेक्टर, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करिए, गवर्नमेंट बहुत सारे जो है डिफरेंट जॉब्स प्रोवाइड कर रही है, जैसे बहुत सारे कंस्ट्रक्शन करवा रही है, ब्रिज बनवा रही है, डैम बनवा रही है, कोई भी स्कूल्स, कोई भी अथॉरिटी, कुछ भी इंस्टेब्लिश हो रहा है, उनका कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिल रही है, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हो रही है। जैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होगी तो ऑलरेडी क्या होगा, इनकम का जनरेशन होगा, इनकम जनरेट होगी तो डिमांड भी ज्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वो भी रिस्पॉन्सिबल है। जब एक्सपोर्ट ज्यादा होगा, मतलब हम अपनी कंट्री से एक्सपोर्ट क्या है, ज्यादा करने लगेंगे, बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा नहीं है कि कर रहे ही ना, एक्सट्रीम करने लगेंगे, तो फिर से हम बाहर भेज रहे हैं तो हमारी कंट्री में क्या होगा, इनकम जनरेशन होगा। जैसे इनकम जनरेशन होगा तो डिमांड भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि इनकम बढ़ जाएगी। तो सो दीज ऑल आर दी सम कॉजेज ऑफ द एक्सेस डिमांड। ये सारे कॉजेज हैं, मतलब इंक्रीज इन कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कंजप्शन पे एक्सपेंडिचर बढ़ गया, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट पे एक्सपेंडिचर बढ़ गया, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट क्या है अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर दिया, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट भी क्या है, बढ़ गया। नेक्स्ट है आपका इम्पैक्ट ऑन द एक्सेस डिमांड, कि एक्सेस डिमांड पे एक्सेस डिमांड का इम्पैक्ट क्या है, मतलब इकोनॉमी में अगर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन आ रही है तो ये वर्सन ही सिचुएशन होगी, वर्स सिचुएशन, बहुत अच्छी सिचुएशन तो होगी नहीं। तो इसका इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट हो रहा है, इम्पैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड। ठीक है, तो पहला है इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा। सो एज देयर इज फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल इन द इकोनॉमी, देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट। जैसे ही फुल मतलब क्या है कि जैसे ही फुल यूटिलाइजेशन, जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो हमारी इकोनॉमी में क्या सिचुएशन हो गई, फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन हो गई। हेंस एक्सेस डिमांड डज नॉट लीड टू एनी इंक्रीज इन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब एक्सेस डिमांड की कंडीशन ये हो जाएगी कि और अब फर्दर जनरेशन नहीं हो सकता है, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन हम लोग
फुलफिल कर लिए, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन हम लोग यहीं पे ही कर लिए, उससे ज्यादा हो रहा है। अब इकोनॉमी इतने सिचुएशन में नहीं है कि वो और से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करे। ठीक है, तो पहला क्या हो गया, इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि लोग ऑलरेडी क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है, तो अब और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑन आउटपुट। आउटपुट पे क्या इसका इम्पैक्ट होगा? सो सिंस रिसोर्सेज हैव ऑलरेडी बीन यूटिलाइज्ड टू द फुल, हमें पता है कि जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज थे उनका फुल यूटिलाइजेशन हम यहीं पे ही कर लिए हैं, हम इसी सिचुएशन पे ही कर लिए हैं, हम इससे ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं, तो हम यूटिलाइजेशन कर लिए, दस एक्सेस डिमांड डज नॉट लीड टू एनी इंक्रीज इन द आउटपुट। अब क्या है, आउटपुट का कोई जैसे आउटपुट का कैसे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, आउटपुट जैसे कोई भी प्रोडक्शन ज्यादा नहीं होगा। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जो भी प्रोड्यूसर सेक्टर है उनको जितना अपने रिसोर्सेज को यूज करना था, जितना भी इनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल थे, उनको वो पूरा फुलर यूटिलाइजेशन कर लिए, पूरा यूज कर लिए, अब वो उससे ज्यादा उसको यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इम्पैक्ट ऑन प्राइस। प्राइस पे इसका इम्पैक्ट क्या होगा? एज आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट कैन नॉट चेंज, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट में कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी नहीं, आउटपुट में भी कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी पूरा जितने भी रिसोर्सेस थे हमारे पास हम उनको यूज कर लिए, तो इन दोनों पे कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इम्पैक्ट ऑन प्राइसेस पे एज आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट कैन नॉट चेंज, ये दोनों चेंज नहीं हो सकते हैं, सो अल्टीमेट प्रेशर इज ऑन प्राइस। अब जब ये दोनों चेंज होंगे नहीं, ऐसा है नहीं कि आउटपुट ज्यादा प्रोड्यूस होने लगे या एम्प्लॉयमेंट ज्यादा जनरेट हो गई, तो सारा प्रेशर अब किस पे आ जाएगा? प्राइस पे ही आ जाएगा, क्योंकि अब प्राइस ही अब इस सिचुएशन को कुछ ठीक कर सकती है, प्राइस ही कुछ सिचुएशन को ठीक कर पाएगी ना, क्योंकि और अब इन दोनों के पास तो कोई ऑप्शन बचा नहीं, ये लोग ऑलरेडी अपना यूटिलाइजेशन कर चुके हैं, तो इनके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं, तो प्राइस टेंड टू राइज एज कॉम्पिटिशन अमंग द बायर विल पुश अप द प्राइस अप। अब इसकी वजह से क्या होगा, प्राइस आपकी इंक्रीज होती जाएगी, ओनली बिकॉज ऑफ दी कि कंपटीशन हो गया अमंग दी बायर। बायर के पास अब कोई भी कंज्यूमर है, उनके पास इतना पैसा हो गया, अब उनके बीच में कंपटीशन हो गया कि मोर एंड मोर आउटपुट वो क्या करें, मोर एंड मोर प्रोडक्ट वो परचेज करेंगे, तो उनके बीच में कंपटीशन हो गया, तो अल्टीमेट एक यही कंक्लूजन बचा कि अब प्राइस को हम क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। इकोनॉमी में अब यही डिसाइड हुआ कि हमें अब प्राइस को इंक्रीज ही करना सबसे बेस्ट ऑप्शन रह गया, उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। जब प्राइस इंक्रीज होगा, सो दिस इज द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन। वही सिचुएशन आपकी क्या होगी, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ जाएगा, जो आप लोग इतने दिन से सुन रहे थे ना, इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन, इसी की वजह से इन्फ्लेशन होता है, बिकॉज हम लोग क्या है, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन पे पहुंच गए हैं। जब एक्सेस डिमांड की सिचुएशन पे पहुंच गए हैं, तो आउट एम्प्लॉयमेंट में कोई चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन, आउटपुट पे चेंज हो नहीं रहा है, क्योंकि ऑलरेडी सारे फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो चुके हैं। एंड प्राइस में भी क्या है, प्राइस में ही सारा अब इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन हो गया, क्योंकि हर एक बायर चाह रहा है कि वो खुद ही वो कमोडिटी को प्रोड्यूस करे, तो अब बेस्ट ऑप्शन किसी भी प्रोड्यूसर के लिए वो हो गया कि वो सारे प्राइस को इंक्रीज करे। जैसे ही प्राइस को इंक्रीज करेगा, सो ये आपका इन्फ्लेशनरी गैप इंक्रीज होता जाएगा, यही आपकी प्रॉब्लम आ जाएगी इन्फ्लेशन। चलिए, नेक्स्ट है आपका डेफिशिएंट डिमांड। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने एक्सेस डिमांड पढ़ लिया, नेक्स्ट है आपका डेफिशिएंट डिमांड। ठीक है, तो डेफिशिएंट डिमांड जस्ट ऑपोजिट है आपका एक्सेस डिमांड का। तो ये सिचुएशन कब होगी, व्हेन एडी इज फॉल शॉर्ट एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट इन इकोनॉमी। ठीक है, जब कौन सी कंडीशन होगी, जब आपका एक डिमांड कम हो जाएगी और सप्लाई क्या है वो ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, सो व्हेन एक्चुअल एडी इज लेस देन द रिक्वायर्ड एडी, एक्चुअल एडी आपकी लेस देन होगी आपकी देन रिक्वायर्ड एडी, मतलब रिक्वायर्ड एडी आपका ज्यादा हो जाएगा और एक्चुअल एडी आपकी कम हो जाएगी। सो डिफ्लेशनरी गैप रेफर्स टू अ सिचुएशन ऑफ अ डेफिशिएंट डिमांड। डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है, ये सिचुएशन ऑफ होता है डेफिशिएंट डिमांड का। सो इट इज द शॉर्टफॉल इन एग्रीगेट डिमांड,
ये शॉर्टफॉल होता है, मतलब जो डिमांड है वो आपका क्या होता है, कम हो जाता है, फॉल कर जाता है, देन द लेवल रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फुल एम्प्लॉयमेंट, जितना फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए हमें डिमांड करना है उससे कम हम डिमांड करें। मतलब ये पॉइंट ई आपका एक्चुअल एडी, रिक्वायर्ड एडी, और आपका जो है ई पॉइंट क्या है, ये शो कर रहा है कि आप इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे हो, बट हमारा जो डिमांड है वो यहां से फॉल करके यहां पे चला जा रहा है, ठीक है, वो फॉल शॉर्ट कर जा रहा है, मतलब हम डिमांड कम कर रहे हैं और सप्लाई क्या हो रहा है, वो ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो इसका डायग्राम आपको पता ही है, सेम चीज है कि इन दिस डायग्राम पॉइंट ई पे क्या है, एडी किसके इक्वल है, एएस के इक्वल है। पॉइंट ई शो क्या करता है आपका, एडी किसके इक्वल है, एएस के इक्वल है, क्योंकि ये फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन। सो इफ एग्रीगेट डिमांड फॉल्स टू AD2, जब एग्रीगेट डिमांड फॉल, ये हमारा क्या है, यहाँ पे पहले हमारी एग्रीगेट डिमांड था, अब डिमांड क्या हो गया, फॉल कर गया। तो जब जैसे डिमांड AD0 से फॉल करके AD2 पे हो जाएगा, देन देयर इज डेफिशिएंट डिमांड। हमारी इकोनॉमी में क्या है, डेफिशिएंट डिमांड की कंडीशन हो जाएगी। सो द डिफरेंस बिटवीन द AD0, डिफरेंस बिटवीन AD0 एंड AD2, इट इज द डेफिशिएंट एंड डिफ्लेशनरी गैप, यही इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्लेशनरी गैप कहते हैं, ठीक है। तब आपका क्या है, रिक्वायर्ड एडी आपको कितना चाहिए, रिक्वायर्ड एडी माइनस एक्चुअल एडी। रिक्वायर्ड एडी आपकी क्या है, EM, आपकी रिक्वायर्ड इतनी है ना, क्योंकि ये वाला क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है, EM आपका रिक्वायर्ड है, और एक्चुअल आपका कितना हो गया है, FM। तो क्या बचा आपके पास, EF आपके पास क्या हो गया है, डेफिशिएंट डिमांड और डिफ्लेशनरी गैप। यही जो डिफरेंस हो गया है आपका। रिक्वायर्ड आपको कितना है, AD0 है, ये है आपका रिक्वायर्ड, और एक्चुअल में कितना हो गया, ये वाला हो गया है, AD फॉल कर गया है, FM हो गया, तो क्या बचा, EF ही आपका क्या है, डेफिशिएंट डिमांड और दी डिफ्लेशनरी गैप है, ठीक है। ये डायग्राम समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमारा क्या है कि डिमांड क्या कर गया है, वो फॉल शॉर्ट पड़ गया, मतलब डिमांड अब हम कम करने लगे हैं और सप्लाई अब क्या हो गई है, वो ज्यादा हो गई। जैसे एक्सेस डिमांड में क्या था कि डिमांड हम ज्यादा कर रहे थे और सप्लाई क्या हो गई थी, वो कम हो गई थी। इसमें क्या हो गया कि डिमांड हमारी कम हो गई है और सप्लाई क्या हो गई है, वो ज्यादा हो गई है, ठीक है। तो ये दिस इज द सिचुएशन जब आपका क्या है कि सप्लाई ज्यादा हो गई है और डिमांड कम, करस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, एक्चुअल एडी लेस देन द रिक्वायर्ड एडी। रिक्वायर्ड एडी आपका ये वाला है जहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है, एक्चुअल एडी आपका फॉल कर गया है तो वो AD2 हो गया है। तो एक्चुअल रिक्वायर्ड एडी हमारा EM है और रिक्वायर्ड आपका FM, तो डिफरेंस क्या हो गया, EF। यही EF आपका क्या है, डेफिशिएंट डिमांड और डिफ्लेशनरी गैप है, ठीक है। नेक्स्ट है अब कॉजेज ऑफ द एक्सेस डिमांड, कि अब इसके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, किसकी वजह से डिमांड हमारी कम हो रही है, बताइए। तो सोचिए किसकी वजह से, कॉजेज ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, किसकी वजह से डिमांड हमारी कम हो सकती है। सो कॉज ऑफ द डेफिशिएंट डिमांड इज डिक्रीज इन द मनी सप्लाई। जब जैसी आपकी डिमांड कम हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि मनी सप्लाई, जो मनी इकोनॉमी में सर्कुलेट कर रहा है, वो क्या हो गया, फॉल कर गया है। क्योंकि अब लोगों के पास डिमांड कम होगी तो क्यों होगी, क्योंकि लोगों के पास जब पैसा नहीं होगा, पैसा नहीं है, पैसा क्यों नहीं हो रहा है लोगों के पास, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ठीक है। ये सारे चीन है, ठीक है। तो जैसे ही आपका अगर डिमांड कम हो रही है, डिमांड कम होने का मतलब है कि मनी सप्लाई, जो सर्कुलेशन हो रहा है इकोनॉमी में मनी का, वो कम हो गया है। और उसकी वजह क्या है, सेम जैसे इंक्रीज इन कंजप्शन एक्सपेंडिचर था, तो इसमें डिक्रीज इन कंजप्शन एक्सपेंडिचर। लोगों का जो कंजप्शन का एक्सपेंडिचर था वो लोगों का डिक्रीज हो गया। वो डिक्रीज क्यों हो गया, कि लोगों के पास कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है। डिक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट,
डिक्रीज किस में हो गया? इन्वेस्टमेंट, कि अब प्रोड्यूसर सेक्टर क्या कर रहा है? कोई भी इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर रहा है। डिक्रीज इन दी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट क्या कर रही है? कोई भी एक्सपेंडिचर कर ही नहीं रही है। अब गवर्नमेंट कोई भी एक्सपेंडिचर नहीं, गवर्नमेंट अगर एक्सपेंडिचर करेगी, कुछ कंस्ट्रक्शन कराएगी तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो इनकम जनरेट होगा, फिर लोग डिमांड करेंगे। बट गवर्नमेंट क्या कर रही है? कोई भी एक्सपेंडिचर नहीं कर रही है। एंड द इंक्रीज इन नेक्स्ट वन इज डिक्रीज इन एक्सपोर्ट। अब एक्सपोर्ट क्या हो गया है? जो हम एक्सपोर्ट करके अर्निंग कर रहे थे, अब वो एक्सपोर्ट भी क्या हो गया? कम हो गया है। अब एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है तो कोई इनकम जनरेशन भी नहीं हो रही। सो दिस इज ऑल दी कॉजेज ऑफ द डेफिशिएंट डिमांड, कि डेफिशिएंट डिमांड का कॉज क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब आता है आपका इम्पैक्ट ऑफ द कॉजेज, इम्पैक्ट ऑफ द डेफिशिएंट डिमांड, कि अब डेफिशिएंट डिमांड का जो डिमांड है, अगर डिमांड हमारी कम हो गई है तो उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे क्या होगा? इम्पैक्ट ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट पे क्या होगा? जैसे ही एज दी लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉल्स इन एन इकोनॉमी, जैसे ही इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट, जो भी इन्वेस्टर्स या प्रोड्यूसर सेक्टर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जैसे ही वो फॉल करेगा, द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो इंक्रीजेस। अब कोई इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं रहा है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर ही नहीं रही है, अब नहीं कर रही है तो एम्प्लॉयमेंट भी क्या कर जाएगा? फॉल कर जाएगा ना, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट क्या करेगा? एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो डिक्रीजेस, देयरबाय कॉजिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। और जैसे ही क्या होगा? इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आ जाएगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट, कोई इन्वेस्टमेंट करेगा या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी तभी तो लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होगी। बट अब कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर नहीं कर रही है, तो एम्प्लॉयमेंट फॉल हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका आउटपुट पे क्या उसका अफेक्ट होगा। सो ड्यू टू फॉल इन इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, द आउटपुट ऑल्सो टेंड्स टू फॉल, कि जैसे ही आपका क्या है कि इन्वेस्टमेंट में फॉल हो गया, इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट भी फॉल हो गया, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट नहीं हो रही है, तो आउटपुट का भी, आउटपुट कैसे प्रोड्यूस होगा? जब कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट ही नहीं कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट ही नहीं हो रही, तो आउटपुट कौन प्रोड्यूस करेगा? नहीं, तो आउटपुट भी आपका क्या कर जाएगा? आउटपुट विल ऑल्सो फॉल। नेक्स्ट है प्राइस पे क्या इसका इम्पैक्ट होगा। सो प्राइस पे यही होगा, एज देयर इज एक्सेस सप्लाई इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी में सप्लाई ज्यादा हो गई है, डिमांड कम हो गई है, सो दस द प्राइस टेंड्स टू डिक्रीज। क्योंकि हमने पढ़ा था 11th में डिमांड और सप्लाई में, कि जब आपके पास सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई, डिमांड बहुत कम हो गई है, तो जनरली प्रोड्यूसर्स और सप्लायर क्या कर देते हैं? अपनी प्राइस को डिक्रीज कर देते हैं। जैसे डिक्रीज करेंगे तो डिक्रीज वो इसलिए करते हैं कि जो भी जितने भी कस्टमर हैं वो जाके कमोडिटीज को, प्रोडक्ट को परचेज करें। तो जैसे ही क्या होगा कि एक्सेस सप्लाई हो जाएगी, सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो प्रोड्यूसर सप्लायर क्या करेंगे? अपनी प्राइस को भी फॉल कर देंगे, प्राइस भी क्या हो जाएगी? फॉल कर जाएगी। यही जो प्राइस फॉल होता है, यही सिचुएशन क्या कहलाता है? आपका डिफ्लेशन का सिचुएशन कहलाता है। जैसे प्राइस इंक्रीज सिचुएशन होती है, उसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। जैसे ही प्राइस डिक्रीज हुई, वो सिचुएशन क्या होती है? डिफ्लेशन होता है। और डिफ्लेशन की वजह से ही ये डिफ्लेशनरी गैप होता है, कि एक्चुअल और रिक्वायर्ड का जो गैप है उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिफ्लेशनरी गैप कहते हैं। तो ये आपका क्या होगा? इम्पैक्ट ऑफ द डेफिशिएंट डिमांड। ओके, सो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन टुडेज क्लास, वी हैव डिस्कस्ड द मीनिंग ऑफ द एक्सेस डिमांड, diagrammatic presentation of the excess demand, causes of the excess demand and the impact of the excess demand. Next we have started the what is the deficient demand. Deficient demand क्या होता है, उसके diagrammatic presentation हमने पढ़ा, उसका causes पढ़ा कि उसके causes क्या है, किसकी वजह से वो हो रहा है, and the last one is we have discussed the impact of the deficient demand. Okay, so it's all about your today's class. In the next class we will start the policy measures, different policy measures to control the excess demand and the deficient demand. And so we will study two kinds of policy, fiscal policy and the monetary policy. So in the next class we will start this topic. Okay, thank you.